Hello learners, let's begin our today's video. Here in this video I am going to give you activity names. This video is not only for the IELTS, it is both IELTS and Duolingo can use these words. It is for the English language actually. When you have to speak about the adventurous person or adventurous activities, you can use these activity names. Here I have provided the image also so that it is being very easy for you to understand what kind of activities are there and how you can identify them. Very first thing is that when in your IELTS test you have to speak about the adventurous person. So I am going to give some examples like that, how you utilize this vocabulary in your description. When you are talking about any adventurous person, you have to talk about his likings, his dislikings, what kind of adventurous things he is doing at that time, to describe that all activities which he is taking interest in. These activities name you can mention in that. Okay, now here you can see very first is adventurous activity or person, that is both for cue card and Duolingo speaking task. Second, B number, describe the picture, which is in Duolingo test where the image is given and you have to describe or write about that in one sentence or two sentences. Okay, next one is say a word for the image, that is also part of Duolingo test. Already I have made 2 videos about this image is you can utilize in all these 3 type of questions for IELTS, for Duolingo as well. Now I have provided here almost 25 activities. Let's begin with the first one, mountain climbing. You can see the photo. From photo you can understand that this is the mountain climbing. It is also very risky, and that is the adventurous thing. Basically adventurous persons are risk seeker. They want to take some risk. They are doing some kind of activities which are normal people are not ready to do, or they are afraid to do basically. So this kind of activity first is mountain climbing. Second, हॉट बलूनिंग. आप फोटो देखकर समझ सकते हैं कि इसमें बास्केट जैसा होता है और हॉट बलून होता है, उसके अंदर लोग बैठते हैं और आसमान में वो जाता है बलून. ठीक है, दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ रिस्की थिंग, हॉट बलूनिंग. बंजी जंपिंग. बंजी जंपिंग, 2 type of spellings are there. You can use any kind of spelling. One more thing I want to add here, that when you are talking about some very common kind of activities in your cue card, so it is very common you will not get any high band score, because आप एक इंसान नहीं होते जिसका ये टेस्ट चल रहा है. बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग जगह से आते हैं सेंटर पे, और अगर ये ही क्यू कार्ड 10 लोगों को रिपीटेशन में आता है और हर कोई एक ही कॉमन चीज़ बोलता है कि रॉक क्लाइंबिंग और माउंटेन क्लाइंबिंग और बाइक राइडिंग और समथिंग लाइक दैट, बंजी जंपिंग, तो वो एक कॉमन टाइप का हो जाता है. एंड कंपटीशन लेवल इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे. जितने कैंडिडेट्स सेम चीज़ बोलेंगे उतना कंपटीशन लेवल हाई होता है. तो यू हैव टू बी स्पीक अबाउट सर्टेन काइंड ऑफ ऑड और मे बी स्पेशल काइंड ऑफ थिंग्स विच इज़ आउट ऑफ द बॉक्स. बहुत सारे लोग जो बोल रहे हैं उससे कुछ अलग आप बोलेंगे तो आपकी वोकेबुलरी हाई जाएगी, आपका एक्सप्रेशन उसमें काउंट होता है और आपके चांसेस रहते हैं कि आपको हाई बैंड स्कोर मिले. तो जो बहुत कॉमन टाइप के एक्टिविटीज़ हैं उसको अवॉइड करें, और जो स्पेशल काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ हैं जो वेरी न्यू है वैसे वाले एक्टिविटीज़ बोलने की कोशिश करें. ठीक है, बंजी जंपिंग इज़ वेरी कॉमन. हॉट बलूनिंग थोड़ा अलग से है. स्कीइंग, जो स्नो होता है माउंटेन पे वहाँ ही होता है. तो यू हैव टू बी वेरी थिंकफुल अबाउट दैट कि आप कौन से एरिया के बारे में बोल रहा है, वो पर्सन कौन से एरिया से बिलोंग कर रहा है, या फिर वैसा बताना पड़ेगा आपको कि वो ऐसी जगह पर गया था जहाँ पर स्कीइंग पॉसिबल है. ठीक है,
नेक्स्ट इज फ्लाइंग फॉक्स। फ्लाइंग फॉक्स में ऐसा होता है कि आपको पूरा एक बैग जैसा बांध दिया जाता है और आपके ऊपर से वो स्ट्रिंग के साथ, रोप के साथ आपको बांध दिया जाता है और एक जगह से दूसरी जगह आप फ्लाई कर रहे हैं वैसे इफेक्ट के साथ जाते हैं। दैट इज फ्लाइंग फॉक्स। ये भी एक यूनिक टाइप ऑफ एक्टिविटी है। रिवर राफ्टिंग वेरी कॉमन। स्कूबा डाइविंग ये भी बहुत कॉमन है, बहुत सारे लोग बोलते हैं स्कूबा डाइविंग। पैराग्लाइडिंग वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, जहाँ आप पैराग्लाइडिंग माउंटेन एरियाज भी कर सकते हैं, ये भी बहुत कॉमन है। वाइल्ड लाइफ सफारी, यस इट इज़ ऑल्सो कॉमन बट यू कैन ऐड सम काइंड ऑफ वोकेबुलरी एंड एक्सपीरियंसेस, आप उसको थोड़ा चटपटा सा डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं अगर आप में स्किल है तो। वाइल्ड सफारी आई थिंक आप सबको पता होगा। स्काई डाइविंग ऑब्वियसली इट इज़ नोन, बहुत सारे डिस्कवरी चैनल पे बहुत शोज आते हैं इन सब चीज़ों के लिए। विंड सर्फिंग ऑब्वियसली, अगर आपको विंड सर्फिंग मेंशन करना है तो उस बंदे को आपको ये बताना पड़ेगा कि उसको स्विमिंग भी आता है, ही नोज वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल्स एंड ही लर्न मैनी थिंग टू डू एंड फुलफिल हिज ड्रीम अबाउट द एडवेंचर्स लाइक दैट। Hiking, mountain camping, hiking, that kind of things are also possible with the friends and family as well. आपके बच्चे होते तो बच्चों के साथ भी आप कैंपिंग कर सकते हैं, हाइकिंग कर सकते हैं, पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। सर्टेन टाइम सम काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ नीडेड द एज रिस्ट्रिक्शन, आपकी परमिशन चाहिए, आपकी हेल्थ की चेकिंग होती है। माउंटेन क्लाइंबिंग। नेक्स्ट इज ब्रिज क्लाइंबिंग, दिस इज़ ऑल्सो डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। बहुत बड़े बड़े जो वर्ल्ड में अलग अलग कंट्री में ब्रिज हैं, उन ब्रिज पर अभी ये लोग ऐसा कर रहे हैं कि उनको आपको टीम बना के ऊपर ले जाते हैं और फिर वहाँ से आपको पूरा व्यू बताते हैं, सेल्फीज़ की परमिशन होती है। समटाइम्स दे आर ऑल्सो डू द बंजी जंपिंग फ्रॉम द ब्रिज एरिया। ओके, सो दैट इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ न्यू एक्टिविटी यू कैन ऐड इन योर क्यू कार स्पीकिंग। केविंग, केव मतलब गुफा। गुफा में आजकल बहुत सारे एडवेंचर्स होते हैं कि वहाँ पर आपको टीम बना कर लेके जाते हैं, छोटे बच्चों को लेकर जाते हैं केव में, बताते हैं कि किस तरह से पहले के लोग रहते थे, प्रिमिटिव लाइफ कैसी होती थी, दैट ऑल्सो दे आर शोइंग अस। ओके, सो मोस्ट प्रोबेबली ये सारे एक्टिविटीज़ वैकेशन के दौरान भी हो सकते हैं, तो आप यू कैन मेंशन अबाउट द वैकेशन क्यू कार्ड, दैट टाइम ऑल्सो यू कैन यूज दिस थिंग्स। अंडर सी वॉकिंग, डेजर्ट सफारी, डेजर्ट एरिया में हो सकता है, दुबई इज़ वेरी फेमस फॉर दैट। टावर जंप, दिस इज़ इन थाईलैंड एंड दुबई बोथ, बहुत सारी जगह पर है बट मोस्ट फेमस आर दुबई एंड थाईलैंड फॉर दैट। पैरासेलिंग एंड पैराग्लाइडिंग बोथ आर डिफरेंट, डोंट कंफ्यूज विद दैट। पैरासेलिंग में आपको बोट के साथ बांधा होता है और आप ऐसे बलून जैसा ये जो है उसके साथ आप जा सकते हो। पैराग्लाइडिंग इज़ डिफरेंट। ओके, ये पानी की एक्टिविटी है, वाटर एक्टिविटी है। नेक्स्ट इज़ एक्सट्रीम बाइकिंग। एक्सट्रीम बाइकिंग माउंटेन एरियाज़ में भी हो सकती है, रॉक वाले एरियाज़ में भी हो सकती है, जहाँ पर बेसिकली नॉर्मल पीपल आर नॉट डूइंग बाइकिंग। रिस्की बहुत है एंड दोज हु आर हैविंग गुड बैलेंस एंड गुड कंट्रोल ओवर देयर बाइक, दे कैन ओनली डू दैट। जंगल कैंपिंग, again you can count it as a family activity. Rock climbing, it is risky, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। ट्रैकिंग, to walk a long distance usually over land such as hills, mountains और forest. ट्रैकिंग बहुत सिंपल सा होता है, आपके साथ अगर गाइड होता है तो ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ योर सेफ्टी एंड अदर थिंग्स। इट्स अ फन एक्टिविटी, मानसून में ज़्यादा होता है। रैपलिंग इज़ अपोजिट ऑफ हाइकिंग एंड रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग में आपको नीचे से ऊपर जाना होता है विद द सेफ्टी, और रैपलिंग में आप ऊपर से नीचे आते हैं। द एक्ट ऑफ गोइंग डाउन वेरी स्टीप slope by holding on to a rope that is fastened to the top of the slope.
आप ऊपर से नीचे एकदम स्पीड में स्टीप स्लॉप पे स्पीड में नीचे आते हैं, उसको रैपलिंग कहते हैं. हियर 25 एक्टिविटीज आर फिनिश्ड. I hope you have noted down all the 25. It will be helpful in writing your essay also, where you have to mention some kind of activities which are very famous among the youngsters. Nowadays youngsters are very adventurous, and that kind of topic is there for the writing task. You can use this there also. I'm going to give the link of some hard words where you can find the explanation online. So I hope you like the video and enjoy it. If you want some certain kind of topic and vocabulary related, then you mention that in the comment section, or you can do the email also. I will definitely going to make video on that. Okay, don't forget to like, share and subscribe. Thank you for watching till the end.